So hello friends, I am here with my next lecture. In this lecture we are going to see a complicated topic on transportation. Now this complicated means this is very different type of problem. So I'll explain you this problem first. See, whenever we get a problem, see this is the problem with 3 plants and same 4 distribution center problem that we have seen. The only difference is I have changed the values here. Okay, so this is the problem, and this basic feasible solution is what I got from any one of the method that we have seen, right? So I have got this solution. Now I need to perform optimality test on this, but the rule that we have seen already is before performing optimality test, check whether m plus n minus 1 is followed or not, right, or it is applicable or not. So the rule I'll state again. The rule is like that, number of allocations in basic feasible solution that we get, ठीक है, जितने भी number of allocations होंगे basic feasible solution, that is I'll count here 1 2 3 4 5. So number of allocated cell over here are 5, right? It should be equal to m plus n minus 1. So 3 rows and 4 columns. So 3 plus 4 is 7, minus 1 is 6, and number of allocations are 5. So these allocations are less than m plus n minus 1. So in this case I can't perform optimality test, right? So I am failing to perform optimality test, won't give me an optimal solution over here. I can't check whether this is an optimal solution or not, right? So in these type of problem we have to first make this problem suitable, so that we can suitable or this problem in such a way that it suits or it satisfied the first rule, that m plus n minus 1 wala rule, right? So I have to make changes in this so that it an optimality test can be performed on this. ठीक है, तो हम लोग पहला स्टेप जो रहेगा वो ऐसा रहेगा कि वी आर गोइंग टू मेक अ स्मॉल चेंज. आई विल लेट यू नो व्हाट दैट चेंज इज. So I'll make a small change and I will see whether that change make this problem, ठीक है, in such a way that I can perform the optimality test. So very simple thing. First step, what I need to do is I need to increase the number of allocations. Very simple, right? Now where should I increase the allocation? That I should know, right? कि कहाँ पे मैं एलोकेशन बढ़ाऊँ सो दैट ये 5 के बदले 6 एलोकेशन हो जाए. 6 एलोकेशन हो गया तो मैं झट से ऑप्टिमिलिटी टेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट? सो अभी वो जो है वो कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे हम लोग. तो हम लोग यूवी मेथड ही यूज़ करने वाले. यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ stepping stone method also, but UV method is considerably simpler than stepping stone method. It is very fast, so we are going to use UV method only. So see, मैंने टेबल बना के रखा है पहले, ठीक है. अभी मैं क्या जो पहले एलोकेशन है, सी दिस इज द नंबर, ये जो है ना ये कॉस्ट कंपोनेंट है जो पहले लिख के आता था, ठीक है. मैंने एलोकेशंस जो है यहाँ पे देखिए, दिस वेर दी कॉस्ट और ये एलोकेशंस थे मेरे, राइट. सो मैं एज इट इज़ वापस से लिख दूंगा और फिर मैं सॉल्व करना शुरू करूँगा. सो गाइस दिस वेर दी एलोकेशंस, ठीक है. अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यूवी मेथड से आई विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ यू एंड वी. सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था u1 जो मेरा स्टैंडर्ड रूल रहेगा, u1 को 0 लूँगा, आई विल गेट v1 एज 4, ठीक है, v2 एज 6. एलोकेटेड सेल पे ही जाने हैं. सो ये देखो यहाँ पे मुझे 4 मिला, नेक्स्ट एलोकेटेड ये है 0 6 है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 6, दिस बिकम 6. उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये 6 है तो ये हो जाएगा 2, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, राइट. ये 2 है, यहाँ पे क्या आएगा 4, 4 प्लस 2 इज 6, करेक्ट. उसके बाद मेरा एलोकेशन यहाँ पे बचा हुआ है, पर यहाँ पे देखेंगे तो v4 u3 कोई भी एलोकेट कहीं पे भी वैल्यू नहीं है, तो मैं फाइंड ही नहीं कर सकता यहाँ पे. तो दिस क्लियरली शोज कि मेरे एलोकेशंस इसमें कम है,
सपोज यहाँ पे एक एलोकेशन होता, ठीक है, अगर यहाँ पे एक एलोकेशन होता तो मैं उससे U3 फाइंड करता और फिर उससे U3 है तो मैं V4 फाइंड कर लेता, पर सिंस एलोकेशन कम है तो आई कांट फाइंड U3 एंड V4, राइट। इसके लिए अभी सिंपल सा रूल है, जब यहाँ पे आप अटक गए ना, तो आप हमेशा जहाँ पे आपको देखो, आप ये ऑप्टिमल सेल है जो जहाँ पे मुझे बेसिकली जिसकी वजह से मैं ये वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगर कोई वैल्यूज़ डालता हूँ तो उससे मैं कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, राइट। एलोकेटेड सेल तो ये है, तो बेसिकली मुझे कुछ यहाँ पे जाने के लिए पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो यही सेल है जहाँ पे मुझे कुछ तो फिल करना पड़ेगा, ना कि यहाँ पे, ठीक है। दूसरा तरीका अगर आपको वेरीफाई करना है कि मैं वापस से एक बार रिवाइंड करता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। देखो यहाँ पे V3 4 मिल गया, अभी मुझे नेक्स्ट एलोकेटेड सेल यहाँ पे जाना है, पर यहाँ पे U3 V4 कम नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होता या फिर एलोकेशन होता तो मैं यहाँ से U3 फाइंड करता और U3 से V4 नेक्स्ट एलोकेशन से फाइंड हो जाता। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक टेम्पररी एलोकेशन डालूंगा, उसको मैं कहूँगा एप्सिलॉन, वेरी सिंपल, राइट। नाउ अब मैं वापस से पीछे जो मैंने जिस पे मैंने रिवाइंड लिया था वो पॉइंट पे आता हूँ कि ये एलोकेशन यहाँ पे एप्सिलॉन यहाँ पे क्यों डाल रहा हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए नहीं डालूंगा कि अगर यहाँ पे डालता भी हूँ तो आई कांट फाइंड U3, राइट, मेरे को ये फाइंड करना है ना U3। सो उसके लिए दूसरा तरीका, अगर आपको वो भी नहीं, ये समझ, ये तो वैसे वेरी इजी है, पर हमेशा ध्यान देना एप्सिलॉन वहीं आएगा जहाँ पे बेसिकली कोई लूप फाइंड कंप्लीट नहीं होगा। देखो आप एप्सिलॉन पे कभी भी लूप नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे एप्सिलॉन डालते हो तो देर इज़ लूप, ठीक है, यहाँ पे डालते हो तो देर इज़ लूप, ठीक है, यहाँ पे डालते हो देन ऑल्सो देर इज़ नो लूप। सो दिस ये जो सेल्स है ना ये ऑप्टिमल सेल है, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर एप्सिलॉन डाल दिया, ये अब एप्सिलॉन है क्या, तो एप्सिलॉन इज़ वेरी बेसिकली इट इज़ वेरी लो वैल्यू, ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे एलोकेशन कुछ है ही नहीं, पर मैं बेसिकली एल्गोरिदम में एक अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना होते हुए भी एक वेरी स्मॉल वैल्यू एलोकेशन है, कुछ तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में करूँगा, इट टेंड्स टू 0 मीन्स इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर द टाइमिंग इतना समझ के रखिए, ठीक है। अभी यहाँ पे एप्सिलॉन डाल दिया, इसके कॉस्ट वैल्यू मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज 5 7 6, ठीक है। सो मैं अभी यहाँ पे एलोकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एलोकेशन कर दिया तो यहाँ पे अगर ये V3 यहाँ से मिल गया तो U3 मिल जाएगा, दिस इज 6, 4 + 2 दिस बिकम्स 2, ठीक है। ये 2 मिल गया तो ये आ जाएगा 6 + 2 8, ठीक है। सो आई होप इट वुड बी इजी टिल नाउ। अब मैंने देखिए एक आर्टिफिशियल बेसिकली एलोकेशन क्रिएट किया है, और सिंथेटिक यू कैन कॉल, सो दिस इज सिंथेटिक एलोकेशन, एक्चुअल एलोकेशन है नहीं, मैं टेम्पररीली क्रिएट कर रहा हूँ सो दैट मेरा प्रॉब्लम जो है वो एलिजिबल हो जाए ऑप्टिमैलिटी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम वे जैसे यूवी मेथड में हम लोग फाइंड करते थे, वी विल ट्राई टू फाइंड कि एलोकेशंस कहाँ पे करना है हमें, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैंने अनएलोकेटेड सेल्स को मुझे टारगेट करना है पहले। सो अनएलोकेटेड पे CJ - ZJ या CJ - U + V वो फाइंड करना है हर अनएलोकेटेड सेल्स पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं 4 + 2 6, 6 - 6 इज 0, स्क्वायर ब्रैकेट 4, 8 - 4 इज 4, 6, 8 - 6 इज 2, 6 to 8, 7 - 8 इज -1, ठीक है। यहाँ पे आ जाते, ये तो एलोकेटेड है, यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज 8, 7 - 8 इज -1, ठीक है। और ये है 6, 5 - 6 इज -1। तो अब ये 3 सेल है जहाँ पे मुझे एलोकेशन करना है,
ठीक है। अब ये एप्सिलॉन मैंने जो यहाँ पे डाला है, ज़रूरी नहीं है कि ये एप्सिलॉन यहीं पे रहेगा। अब आप देखना वो एप्सिलॉन कैसे शिफ्ट होता है कहीं पे भी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे तीनों जगह एलोकेशंस करना है, बिकॉज वो मुझे सही सोल्यूशन देने वाला है। तो मैं आर्बिटरली किसी भी एक पे, तो मैं सबसे पास वाले में यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। इट जस्ट ट्रायल एंड एरर, ठीक है। कोई भी एक पे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यहीं पे करना है या फिर यहीं पे करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा, आई विल राइट द मैट्रिक्स अगेन, ओके। सो गाइस, डीजेनरेसी इज टिपिकली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कभी भी अगर ये आएगा तो ये चीज़ ध्यान देना है कि दिस इज़ गोइंग टू बी लेंदी, नॉट वेरी इजी। ओके, सो हमें अभी -1 यहाँ पे मिला था, ठीक है। सो यहाँ पे एलोकेशन करना है। अब यहाँ पे कितना एलोकेशन करूँ, ठीक है, मैक्सिमम एलोकेशन करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले एलोकेशन करने के पहले मुझे लूप बनाना है। तो ये वेरी सिंपल लूप, आप अगर स्टेपिंग स्टोन मेथड में आपको याद है, सो यहाँ बेसिकली मैं बैलेंस कर रहा हूँ। लूप क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज बैलेंस, यहाँ पे अगर कोई भी क्वांटिटी डालूंगा, ठीक है, सो वो मुझे ध्यान देना है कि वो डिमांड मेरा बैलेंस हो जाए। अगर यहाँ पे मैंने 10 क्वांटिटी सपोज डाल दिया, सो 20 + 10 + 10 इज़ 40, पर मेरा डिमांड जो प्लान 2 को वो 30 का ही है, बराबर। तो मैं यहाँ पे कुछ भी मन से डाल नहीं सकता, मुझे इस तरीके से बैलेंस करना है कि ये मेरा ये और ये वैल्यू दोनों बैलेंस्ड रहे, राइट। तो उसके लिए मैं लूप बनाता हूँ। अब देखिए मैंने लूप क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं सपोज थीटा ऐड कर देता हूँ, या तो कोई भी वैल्यू थीटा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो वही जो क्वांटिटी है वो मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा और यहाँ से अगेन निकालना पड़ेगा, बराबर। सो दिस विल बी, जो भी वैल्यू रहेगा, जैसे अभी तो कुछ एलोकेशन नहीं है, सपोज एक क्वांटिटी करूँगा तो ये 1 से माइनस हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, सॉरी ये 51 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, राइट। तो 9 + 1 + 20 इज़ 30, राइट। सो अब मुझे देखिए इन लूप में सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगा, बेसिकली मुझे ये देखना है सेल का जो वैल्यू वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों जो सेल है वो मेरे रेड्यूस होने वाले, बिकॉज थीटा जहाँ जितना यहाँ पे प्लस थीटा करूँगा यहाँ पे माइनस थीटा होगा, राइट। तो यहाँ पे 10 कर सकता हूँ, 10 से ज़्यादा करूँगा तो ये माइनस में चला जाएगा क्वांटिटी, मुझे वो तो करना नहीं है। मैक्सिमम 10 क्वांटिटी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, राइट। और यहाँ से मैक्सिमम कितना डाल सकता हूँ क्वांटिटी, अगर बैलेंस मेंटेन करना है तो एप्सिलॉन से ज़्यादा अगर ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, एप्सिलॉन क्वांटिटी विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मैथ्स में डोंट सी कि सर वेरी नेग्लिजिबल है तो क्वांटिटी क्या होगा, नेग्लिजिबल है, पर हम लोग मैथ्स में हैं तो हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू है मैं वो थीटा एप्सिलॉन ही यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो उससे अगर ये फॉर एग्जांपल 1 भी कर दिया मैंने तो ये तो हो जाएगा, पर ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो एप्सिलॉन ऐसा समझना है कि यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन का ही डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से एप्सिलॉन निकल गया तो ये बन गया 0, यहाँ में एप्सिलॉन ऐड हो गया, ठीक है। कितना क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाला एप्सिलॉन, ठीक है। सो यहाँ पे अभी नया जो क्वांटिटी आएगा वो एप्सिलॉन आएगा। यहाँ से कितना क्वांटिटी निकाला एप्सिलॉन, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन है 0, तो यहाँ बेसिकली 0 है, मतलब ये अनएलोकेटेड हो गया। यहाँ पे 50 क्वांटिटी है, इसमें मैंने कितना ऐड किया, थीटा मेरा कितना था एप्सिलॉन, सो 50 + एप्सिलॉन इज एक्चुअली 50, right. Similarly 10 minus epsilon is 10,
बराबर। अब अब ये क्या हुआ, देखिए मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन डाला, ठीक है, पर ये एप्सिलॉन का जो सेल था ना वो सही नहीं था। ये तो मैंने बैलेंस फाइंड करने के लिए मैंने ले लिया था, पर ये भी सही नहीं था, एक्चुअल वैल्यू ये था। यहाँ पे बेसिकली मुझे एलोकेशन करना था, तो मुझे लूपिंग से मेरा बैलेंस होके मुझे एलोकेशन मिल गया, राइट। अब देखिए आप प्रॉब्लम को, तो अब आपको समझ में आएगा। 1 सेकेंड। अब ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉपर प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज द नंबर ऑफ एलोकेशंस, नाउ वी काउंट 1 2 3 4 5 6 एलोकेशंस है। नाउ वी कैन परफॉर्म द ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, सॉरी, ओके। सो वंस अगेन ऑप्टिमैलिटी टेस्ट हम लोग यूवी मेथड कर रहे हैं, तो यूवी मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको 0 लेंगे, 0 लेने के बाद विल ट्राई टू फाइंड आउट यहाँ पे कितना आएगा, बट ऑब्वियसली 4 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 0 है तो 6, यहाँ से यहाँ पे आता हूँ, ये 6 है, u2 विल बिकम 2, राइट, 6 + 2 इज़ 8। सिमिलरली u2 2 है, ये 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 + 2 इज़ 6, करेक्ट। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ये 7 है, ये 6 है, तो ये हो जाएगा 1। आई रिपीट अगेन, दिस इज़ 7, 1 + 6 इज़ 7। अब यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज़ 1 8, दिस विल बिकम 7, ठीक है। अब सारे अनएलोकेटेड सेल्स पे हम लोग CJ - ZJ, CJ - UI + VJ वाला रूल अप्लाई करेंगे, और हम लोग फाइंड करेंगे इनका कॉस्ट कंपोनेंट। इनसे बेसिकली कॉस्ट में कितना चेंज आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, CJ इज़ 8, 8 - 4 इज़ 4, 8 - 7 इज़ 1, 7 + 2 इज़ 9, 7 - 9 इज़ -2, 4 + 1 is 5, 6 - 5 is 1, 4 + 2 is 6, 6 - 6 is 0, 4 + 1 is 5, 5 - 5 is 0. So basically this is the cell which I need to focus, ठीक है। यहाँ पे -2 आ रहा है, so हर एलोकेशन पे यहाँ पे -2 से वैल्यू कम होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। Now guys, one important thing which actually I regret that I didn't tell you during stepping stone method, ठीक है। स्टेपिंग स्टोन में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, पर एक्चुअली दैट वाज नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप उसके बिना भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने मेथड स्टेपिंग स्टोन में किया था, पर मेरे हिसाब से अगर वो रूल फॉलो करोगे यू विल बी ऑलवेज सेफ, ठीक है। आपको हमेशा थीटा वाला जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अभी वैल्यूज़ डालने हैं, ठीक है, इतना डालना है, सो दैट मेरा जितना पर यूनिट क्वांटिटी मेरे 2 रुपये से फ़ायदा हो रहा है, मुझे जितना हो सके उतना डालना है, बराबर। तो मैं सपोज मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको थीटा बोलता हूँ। अभी मुझे लूप बनाना है, करेक्ट। ये तो आपको मैंने स्टेपिंग स्टोन मेथड में बताया था कि हमें लूप बना के सॉल्व करना है। अब यहाँ पे लूप कैसे बनेगा, एलोकेशन देखिए, यहाँ पे एलोकेशन है, यहाँ पे एलोकेशन है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो बेसिकली ये एक लूप बन रहा है, ये एप्सिलॉन भी एलोकेशन है, ठीक है। सो ये एक लूप बन रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं जो मैक्सिमम वैल्यू क्वांटिटी है वो लेता हूँ थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -थीटा हो जाएगा, 50 - थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन + थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 - थीटा, बराबर। लूप में बैलेंस करने के लिए मैं लूप में एडजस्टमेंट करूँगा, ठीक है। अब देखिए आप कौन सा जो है, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो मुझे ये वाले ही देंगे, बिकॉज ये कम हो रहे हैं, जितना ये थीटा से बढ़ेगा ये, या फिर ये कम होने वाला है उतने वैल्यू से, राइट। सो दैट बैलेंस रहे प्रॉब्लम। इसको नेगेटिव जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, थीटा को 50 से ज़्यादा होना पड़ेगा,
इसको नेगेटिव करने के लिए थीटा को 10 से ज़्यादा होना पड़ेगा। सो मैं मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 10 ही डाल सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये जो है ये मिनिमम है, ठीक है। यहाँ पे 10 से अगर मैंने 11 किया तो यहाँ पे तो मुझे आंसर 39 आएगा, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, जो कि -1 क्वांटिटी तो मैं कभी प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भेज नहीं सकता हूँ, क्वांटिटी विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, राइट। सो मिनिमम इन दोनों में से मैं 10 है तो 10 से लूँगा, तो थीटा विल बिकम 10, ठीक है। सो मैं वापस से अभी ये प्रॉब्लम ये बना देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं। सो अभी मेरा नया जो है मैं यहाँ पे 10 डालूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नया एलोकेशन आ जाएगा 10, यहाँ पे 10 आ गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 है, तो माइनस हो जाएगा थीटा, थीटा इज 10, सो दिस विल बिकम 40, ठीक है। एप्सिलॉन प्लस 10, एप्सिलॉन इज नेग्लिजिबल, दैट मीन्स ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे 10 माइनस थीटा विच इज़ 10 विच इज़ 0, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये जो है मेरा पहले का एलोकेशन है, दिस इज 40, करेक्ट। सो मेरा अब देखिए अब 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन, ठीक है। और ऑप्टिमल है कि नहीं वो तो हम लोग को पता चल जाएगा, पर अब ये आ गया, ये मेरा डीजेनरेसी का प्रॉब्लम मैंने एप्सिलॉन से सॉल्व किया, और उसके बाद मैंने यूवी मेथड परफॉर्म करके ऑप्टिमैलिटी टेस्ट से मैंने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड किया। ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड होने के बाद मैं एक बार वापस से यूवी मेथड अप्लाई करता हूँ, जस्ट टू लेट नो कि और ऑप्टिमल सोल्यूशन बाकी है कि नहीं, ठीक है। तो इसको 0 लिया, देखिए ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 0 है ये 6 आ जाएगा, ठीक है, ये 6 है, ये 7 है तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 है, ये 8 है तो ये आ जाएगा, ओके। सो ये आ जाएगा 7, ये 7 है तो ये 0 आ जाएगा, और ये 0 है तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद आई होप एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ अगेन, 4 + 0 इज़ 4, सारे एलोकेटेड सेल से 6, उसके बाद 6 7 करेक्ट, 6 + 1 7 एंड 7 + 1 8 करेक्ट, ठीक है। अब एक बार नॉन एलोकेटेड सेल में वैल्यूज़ फाइंड कर लेता हूँ। 8 - 6 इज 2, 7 8 - 7 इज़ 1, 4 6 - 4 इज़ 2, 8, और यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ओके, 6 + 0 6, 8 - 6 इज 2, उसके बाद ये बचा 5 5 5 0 एंड दिस इज 6 + 1 7, 1 second, and 6 - 7 is -1, ओके। सो अब सी हियर यू कैन सी क्लियरली कि अभी एक और ऑप्टिमाइजेशन बाकी है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको भी लूपिंग करूँगा मैं, वेरी सिंपल लूप, ठीक है, प्लस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा, ठीक है। सो उससे मुझे अब मुझे देखना है कि लिमिटिंग वैल्यू जो है ये दोनों है, इसमें मिनिमम ये है, सो मैं यहाँ पे 40 डाल सकता हूँ, 1 सेकेंड, 40 10, ओके। सो 40 यहाँ पे 40 यहाँ पे 50, राइट। तो 40 मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा तो माई थीटा वैल्यू विल बिकम 40, 40 से ज़्यादा इंक्रीज़ करता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आई विल लिमिट दिस इनटू थीटा वैल्यू एज 40 ओनली, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे वैल्यू जो है एलोकेशन जो है वो आ जाएगा 40, यहाँ पे -40 - 40 0, ओके, दिस विल बिकम प्लस मीन्स दिस विल बिकम 50। अच्छा मैं एक बार और सेल बना के प्रॉपरली बनाता हूँ सो दैट आप लोगों को समझ में आए। सो ये है, ठीक है,
ठीक है, सो हम लोग कहाँ पे थे? पहले मैं वैल्यूज लेता हूँ। कॉस्ट कंपोनेंट 4 6 8 8 6 8 6 7 5 7 6 8। सो गाइस, यहाँ पे जहाँ जैसे ही हमने एप्सिलॉन प्रॉपरली प्लेस किया था ना, तो हम बेसिकली डी जनरेसी के जो प्रॉब्लम था उससे बाहर आ गए थे, राइट। तो हम, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशंस 6 हो गए थे, तो ये आप याद रखना हमेशा कि नाउ वी आर आउट ऑफ डी जनरेसी, वी कैन सॉल्व इन द नॉर्मल मेथड ओनली। ठीक है, तो एलोकेशंस जो थे वो लिख देता हूँ 2020। यहाँ पे था 10 एलोकेशन, और बाकी ये जो 4 एलोकेशन है ये लूप थे। ठीक है, तो ये कैसे लूप थे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं था एलोकेशन, कोई एलोकेशन नहीं था, तो यहाँ पे प्लस थीटा किया मैंने, बिकॉज यहाँ का कॉस्ट कंपोनेंट माइनस आया था, तो यहाँ पे एलोकेशन करना पड़ा मुझे। तो एलोकेशन मैंने 40 से किया, सो दिस विल बिकम 40, राइट। दिस बिकम्स 40 माइनस 40 0, मीन्स कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। दिस विल बिकम प्लस थीटा, मीन्स दिस विल बिकम 50, राइट। और यहाँ पे जो था वो 50 था, बेसिकली ये वाला सेल, तो 50 माइनस थीटा है, सो माइनस थीटा इज़ 40, 50 माइनस 40 इज 10। अगर बैलेंसिंग देखना है तो एक बार देख लेते हैं हम लोग वापस से, मैं डिमांड और सप्लाई लिख देता हूँ। ठीक है, U1 U2 U3 V1 V2 V3 एंड V4। ठीक है, तो 20 40, दिस इज 20 30 50 50 60 एंड 50। सो प्रॉपरली बैलेंस प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ एलोकेशन 1 2 3 4 5 6, 6 एलोकेशन है। ठीक है, अगर कॉस्ट हम देखेंगे तो कॉस्ट अभी सी -1 था, 40 मीन 40 रुपी। यहाँ पे देखिए -1 का डिफरेंस आ रहा था, पहले जो था वो -2 का था, तो हमने उसमें कितना एलोकेशन किया था? 10। ठीक है, सो 20 रुपीज़ से मैंने कॉस्ट को कम किया था, फिर वापस से इटरेशन परफॉर्म किया जिसमें कि -1 था, लेकिन एलोकेशन मैंने 40 क्वांटिटी किया, मतलब 40 से और कॉस्ट रिड्यूस हो गया मेरा। ठीक है, अब नया टोटल कॉस्ट अगर मैं निकालूंगा, सो इट विल कम आउट टू बी 80 प्लस 120 इज 200 प्लस 60 260 प्लस 35 260 प्लस 350 इज 610 प्लस 70 680 प्लस 240 680 प्लस 240 920। सो बेसिकली टोटल कॉस्ट इज 920। ठीक है, बिफोर फर्स्ट सेकेंड इटरेशन इट वाज 960। ठीक है, और उसके भी पहले जो ऑप्टिमल सोल्यूशन जो था, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, सॉरी, सो 920 अभी आया है। फर्स्ट इटरेशन में 960 था, सेकेंड इटरेशन में मैंने 40 से कम किया। ठीक है, और उसके पहले जो मेरे फिजिबल सोल्यूशन से जो मुझे मिला था, वहाँ पे अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ, सो यू कैन जस्ट सी कितना था। सो सी 80 प्लस 120 इज 200 प्लस 80 इज 280 प्लस 300 इज 580 580 प्लस 400 इज 980। सो 980 ये मेरा ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का कॉस्ट था। फिर मैंने फर्स्ट इटरेशन में, इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ, फर्स्ट इटरेशन में मैंने -2 से कॉस्ट को रिड्यूस किया, बराबर। -2 से कितना क्वांटिटी था? 10 था, तो 20 रुपीज़, तो यहाँ पे देखिए 20 रुपीज़ से कम हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए आप, तो मैंने 40 क्वांटिटी -1 मतलब 40 रुपीज़ से और कम किया, सेकेंड इटरेशन में और 40 कम हो गया, 920। ठीक है, अगर आप अभी चेक करेंगे U और V, और फिर वापस से एक बार आप करेंगे, मैं करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग वापस से एक परफॉर्म करेंगे, जस्ट टू लेट यू ऑल नो कि अभी कोई ऑप्टिमाइजेशन बाकी नहीं है। 4 है, इसको 0 लूँगा, दिस विल बिकम 4, दिस बिकम 6, राइट।
फिर यहाँ पे आ जाता हूँ, ये 6 है, ये 7, तो ये आ जाएगा 1, ये 1 है तो ये आ जाएगा 5, ये 5 है तो ये आ जाएगा 1, राइट, ये 1 है, ये 7 तो ये आ जाएगा 6, करेक्ट। अब अनऑक्यूपाइड सेल के वैल्यूज़ देखते हैं। सो 4 + 1 5, 6 - 5 इज़ 1, 6 7, 8 - 7 इज़ 1 अगेन, ठीक है, 8 और ये 5 तो 3, 6, 8 - 6 इज़ 2, 5, 5 - 5 0, और ये बचा हुआ 6 + 1 7, 8 - 7 इज़ 1। सो एक भी जो सेल्स है वो नेगेटिव नहीं है, सारे पॉजिटिव है, मतलब देर आर नो चांस ऑफ रिडक्शन नाउ, राइट। सो ये हमें इजीली बताता है कि नाउ वी हैव रीच द ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है डिजेनरेसी के, इसके प्रॉब्लम्स एक बार आप खुद यही प्रॉब्लम वापस से खुद आप अपने विदाउट सीइंग दिस सोल्यूशन एक बार खुद सॉल्व कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी जाएगा। प्रॉब्लम इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, पर कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी लेंदी है। सो the more you will practice, the more perfection you will get into it. So this is all about degeneracy and how to take the problem out of degeneracy to apply the optimality test. So thank you everyone for watching the video. Bye.